शुभ संध्या। मैं आयुष बासुर कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज इस गणतंत्र दिवस के दिन मैं एक छोटा सा भाषण देने जा रहा हूँ। इस वर्ष हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान सभा ने 1949 में इसे अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 26 जनवरी को हुई थी, इसलिए गणतंत्र दिवस की स्थापना 26 जनवरी के दिन ही की गई थी। हमारा देश इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र देश बन गया था। हर भारतीय हर साल इस दिन को खुशियों के साथ मनाते हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हैं। हर भारतीय के जीवन के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पूरे भारत में हर जगह इस दिन को उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। हम सभी को भारत का नागरिक होने का गर्व है। इस महान दिन को न सिर्फ भारत में रहने वाले भारतीय बल्कि विश्व के कोने कोने में रहने वाले भारतीय उत्साह से मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all. Lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside. Good evening to one and all present here. First of all, I would like to wish all of you a very happy Republic Day. Republic Day Ganatantra Divas is one of the national holidays in India. Republic Day is celebrated with great enthusiasm every year. It is one of the national holidays in India. However, a few government establishments remain open on this day for flag hosting. It is an important day for every Indian. Republic Day is celebrated on 26th January every year. On this day in the year 1950, our Constitution of India came into effect. We live in a democratic country where we enjoy the various fundamental rights which are written in our Constitution. Republic Day is celebrated as a symbol of pride. Thank you. Hello everybody, today is our 73rd Republic. The Constitution of India came into effect.
This is the day when India marked its transition from an autonomous country to a full-fledged territory which was being headed by the President of India. The making of the constitution took around 2 years, 11 months, 18 days. The constitution was made in two languages. The first language is Hindi and the second language is English. The constitution's original copy is in the Parliament House, New Delhi. Today, we Indians are proud that our country had given the world a number of technocrats who are leading the world globally, and also the business leaders like Mukesh Ambani, Ratan Tata. प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं श्वेता भारद्वाज कक्षा 10वीं ए से आपके सामने रिपब्लिक डे के दिन एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सभी ये जानते हैं इस बार भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए ये बहुत ही खास दिन है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम सभी 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही साथ भारत का संविधान एक लंबे संघर्ष के बाद भारत पर लागू हुआ था। भारत का संविधान बनाने में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, इसलिए आज के दिन हम उन्हें भी याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और ठीक उसके 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। 3 रंगों का वस्त्र नहीं, यह ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व है। उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में संकित है। सच ही कहा गया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम ए आज़ादी। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन।
महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। हमें ऐसे महान अवसरों पर उन्हें दिल से याद करना चाहिए और सलाम करना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए हम झंडा फहराते हैं और उसे सलाम करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये झंडा हमें बड़े ही संघर्ष के बाद मिला है। और राष्ट्रीय गान भी गाते हैं और मुझे एक भारतीय होने का बहुत ही गर्व है। मैं अपने जीवन में देश से जातिवाद और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होना देखना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चढ़ गए जो हंसकर सूली पर, जिन्होंने सीने पर गोली खाई, जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश पर, हम उनको सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।